Hello, champs. How are you all? Hope you will be fine. So, children, today we will start a new chapter, chapter number 6 of your English grammar book, that is verbs is, am, are. Okay, chapter number 6 verbs is, am, are. See, children, at first we should know what is verb. As you have already studied in your previous classes, that an action word or doing word is called verb. An action word or doing word is called verb. For examples, eat, give, take, come, teach, stand, and etc. Then what have you learnt? That what is verb? तो verb उसे कहते हैं जो हमारा एक्शन वर्ड है और डूइंग वर्ड है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. और उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए आपके? कम, आना, टीच, पढ़ाना, टेक, लेना, गिव, देना, स्टैंड, खड़े होना. जितने भी हमारे डूइंग वर्ड्स है, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है, दैट विल बी कॉल्ड एज वर्ब. ओके. नाउ चिल्ड्रन, verbs are categorized into two types. Okay, first one is your helping verb and second one is your main verb. And the examples which I have given, that is your main verbs, and in this chapter we will study helping verbs. Fine. And what are helping verbs? The verbs which help the main verb. Okay. What are main verbs? I have already told you that teach, eat, etc. These all are main verbs, and in this topic we will study helping verb. Helping verbs are those verbs which help main verb. हेल्पिंग वर्ब्स उसे कहते हैं जो हमारे मेन वर्ब को हेल्प करता है सेंटेंस में. फाइन. एंड व्हाट आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स? इज, एम, आर, was, were. These all are helping verbs. But in this chapter we will study only is, am, are. Okay. See children, as I have told you that was, were are also helping verbs, but that will be used in your past tense. Got it? And these is, am, are will be used in your present tense. Okay. Now see children, these helping verbs is, am, are also called now words. Fine. These are called now words. जो हमारा is, am, are जो हमारा हेल्पिंग वर्ब्स है, उसे हम और क्या कहते हैं? नाउ वर्ब्स भी कहते हैं. ठीक है. नाउ मीन्स व्हाट? इट मीन्स इट इज़ शोइंग योर प्रेजेंट. मतलब कि ये हमारा प्रेजेंट में जो वर्क हो रहा है, इट इज़ शोइंग दैट. नाउ चिल्ड्रन, वी विल कम टू नो द यूजेस ऑफ is, am and are. Okay. At first you should know that these all are used in simple present tense. Got it? Now see, is, the first one is your is. It will be used with singular subject. With subject? Singular subject. The subject of the sentence should be singular. Now what is subject? Then subject is your doer. मतलब कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर होता है, जो किसी काम को कर रहा है, जिसके बारे में सेंटेंस हो. ओके. नाउ इफ़ देयर बी सिंगुलर सब्जेक्ट देन यू विल यूज़ इज़. अगर हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस में सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? इज़ यूज़ करेंगे. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज़ अ स्मार्ट बॉय. हेयर द व्हाट इज़ द सब्जेक्ट हेयर? जो इस सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस है, राहुल इज़ अ स्मार्ट बॉय, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? दैट इज़ योर राहुल. ओके. वो आपका राहुल है सब्जेक्ट. एंड सी चिल्ड्रन, राहुल, इज़ राहुल सिंगुलर और प्लूरल? Then it is singular because here only one boy is there whose name is Rahul. It means the word Rahul is indicating to one person. ठीक है. यहाँ जो वर्ड हमारा राहुल है, जो नेम है, वो किसी एक पर्सन का नाम है ना. So it is singular, and with singular subject we will use what? Is. Fine. See the second one. He is a student. He is what? This is also your singular subject, because here again one person is indicating. Okay. So here also you will use is. As you can see here, it is written he is, and the word is underlined in each sentence. You can see. Third one, my mother is having green tea. My mother,
It means, are you having what? How many mothers you have? Obviously one mother. Then my mother. Here again one person is indicated here, so you will use here is. Got it? You will read all the sentences. Okay, now come to the second one, that is your am. So children, when you will use am, and you have to keep in your mind that am will be always used with I. Okay, जो हमारा आई होता है उसके साथ यू कांट यूज इज और आर, यू हैव टू ऑलवेज यूज एम. गॉट इट? ये हमारा फिक्स होता है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो अगर जहाँ कहीं भी आई रहा, वेन एवर यू फाइंड दैट देयर इज अ वर्ड आई, देन यू हैव टू यूज एम. गॉट इट? See children, the examples. First one, I am going to the Mughal gardens. Here again am is used because here the subject is your I. Whenever there will be subject I, then you have to use am. Got it? अगर आपका सब्जेक्ट आई होता है तो आप क्या यूज़ करोगे? आँख बंद कर कर am यूज़ कर लेना है आपको. फाइन. सी द सेकेंड एग्जाम्पल. आई एम फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स. मैं क्या हूँ? फ्लावर्स का शौकीन हूँ. फॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा लाइक करना. गॉट इट? तो here again I is there, so here you will use am. Now see the fifth example. This is your interrogative sentence. As you already studied interrogative sentence in your last class. Am I disturbing you? See children, here the subject is also I, that's why it is written am, and this is your helping verb. While making interrogative sentence, what we do, we put in helping verb at the बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. अगर हमें कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जब हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम स्टार्टिंग में रख देते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं. ओके, देन हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो फॉर्म हो जाता है. एंड देन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क. और सेंटेंस के एंड में क्या पुट करते हैं? क्वेश्चन मार्क. गॉट इट? नाउ कम टू द थर्ड वन, आर. Now see, we will see the uses of are. See children, are will be also used in your simple present tense. Okay, and are will be used with plural subject. The subject should be plural. Okay, it means what? जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए. इट मीन्स उस सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही हो, देन यू विल यूज आर. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. Sonali and I are participating in a quiz. See children, here there are two persons. First one is your Sonali and the second one is your you yourself. It means I, the person who is talking here. Okay. तो यहाँ दो लोग हो गए, एक सोनाली है और एक जो पर्सन अपने बारे में बात कर रहा है जो आई लिखा अपने लिए. तो यहाँ दो लोग हैं, दैट्स वाई हियर इट इज़ यूज्ड आर. सोनाली एंड आई आर पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज. वो पर्सन जो बोल रहा है कि सोनाली और मैं जो हूँ, जो लड़का है, जो भी हो, उसने क्या कहा कि हम लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे किसी क्विज में. गॉट इट? नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल. चिल्ड्रन आर जंपिंग इन टू द पूल. सी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज वॉट? दिस इज योर प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड. ओके, चाइल्ड इज योर सिंगुलर एंड इट्स प्लूरल इज चिल्ड्रन. चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन. चाइल्ड मतलब एक बच्चा एंड चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे. ठीक है, एंड हेयर अगेन आर सब्जेक्ट इज प्लूरल, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड आर. तो यहाँ भी क्या यूज़ किया गया है? आर. चिल्ड्रन आर जंपिंग इन टू द पूल. गॉट इट? अगेन सी थर्ड वन, दे आर हैप्पी. दे इज वॉट? दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट बिकॉज दे मीन्स वे लोग. इन हिंदी यू कैन से दे मीन्स वे लोग. Then again here there are so many persons, that's why your subject is plural. Then here you will use are. तो आपका जो दे है वो क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं? आर. नो, यू विल रीड ऑल द एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, आई एम, आर. नाउ सी चिल्ड्रन, you have to choose what you will use here, is, am, are. Okay, then आपको यहाँ क्या करना? एट फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. ओके, सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. देन आफ्टर यू विल चूज अमंग दिस इज, एम, आर. फाइन.
See, the vendors. Here there is not a single vendor. Here it is written vendors. It means there are so many vendors. यहाँ एक से ज़्यादा vendor है बेचने वाला. Okay. Then here what you will use? What? Are, because it is a plural subject. Then here you will use in first, the vendors are selling popcorns. फर्स्ट में क्या है, जो आपका वेंडर है वो यहाँ वेंडर नहीं वेंडर्स लिखा है, दैट्स वाई ये आपका प्लूरल हो गया, मतलब एक से ज़्यादा वेंडर्स की बात की जा रही है. एंड हेयर व्हाट यू विल यूज़, और आप यहाँ क्या यूज़ करोगे? आर. गॉट इट, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा प्लूरल हो गया है. नाउ सी द सेकेंड वन, पॉपकॉर्न्स. हेयर अगेन पॉपकॉर्न्स इस लगा है, इट मीन्स एक पॉपकॉर्न नहीं है, देयर आर मेनी पॉपकॉर्न्स. सो अगेन इट दिस इज योर प्लूरल सब्जेक्ट. ये फिर से आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. देन यू विल यूज हियर आर. एंड द थर्ड वन इज व्हाट? आई. आई इज योर व्हाट? I have told you that if you got the word I, then you will use there am. Okay, so you will use here I am going to buy popcorns. Okay, fine. Now in this way you will do all the questions by your own. Now come to the fun time. See children, decode the message by taking the first letter of each picture. आपको क्या करना है इसमें, some messages here, some messages given by using these pictures. कुछ आपको मैसेज दिए जा रहे हैं. ओके, आप सारे को डिकोड कर लोगे, देन यू विल फाइंड अ मैसेज. ओके, here what you have to do, you have to write the first letter of the word. ओके, और मतलब कि जो हमारा पिक्चर दिया हुआ उसका जो वर्ड हुआ, जो हुआ उसका मतलब, उसके फर्स्ट लेटर को आपको लिखना है इस बॉक्स में. देन इट विल फॉर्म अ वर्ड, ये एक वर्ड फॉर्म करेगा. और जब आप ये पूरा कर लोगे, चारों बना लोगे आप, देन इट विल गिव यू अ मैसेज. ओके, देन लेट्स सी, द फर्स्ट पिक्चर इज योर व्हाट? इज दिस योर नेस्ट? है ना, ये नेस्ट है. देन हेयर द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेस्ट इज एन. जो पहला लेटर होता है नेस्ट का वो क्या हुआ? एन हुआ. तो आप यहाँ क्या लिखोगे? एन. देन सेकेंड पिक्चर इज योर एग. द एग का फर्स्ट लेटर क्या हुआ? ई. Then you will write here E. And then this is your what? Van. The third picture is your van. ये आपका van है. Then here you will write the first letter of the word van, that will be your V. Then NEV. Two boxes are remaining. Then see here the fourth picture is your elephant, and the first letter of the elephant is your E. Then here you will write E. And then the fifth picture is your rose. Okay, जो आपका फिफ्थ पिक्चर है वो कौन सा है? रोज़ का है. देन द फर्स्ट लेटर ऑफ द आर इज रोज इज आर. देन हेयर यू विल यूज आर. देन इट विल बिकम NEVER. देन द वर्ड विल बी फॉर्म्ड एज नेवर. ओके, इन दिस वे यू विल fill all the boxes. Okay, and then at the last you will find a message. So that's all for today. Now thank you.